રાજસ્થાનમાં કડક સુરક્ષા વચ્ચે 199 બેઠકો માટે મતદાન ચાલી રહ્યું છે। સવારે 7 વાગ્યાથી શરૂ થયેલું મતદાન સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ચાલશે। રાજસ્થાનની 199 વિધાનસભા સીટ ઉપર સવારે 7 વાગ્યાથી મતદાન ચાલી રહ્યું છે। મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર સવારે 9 વાગ્યા સુધીમાં 9.77% મતદાન થયું હતું। જયપુર અને જોધપુર સહિત અનેક શહેરોમાં સવારથી જ લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે। રાજસ્થાનના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે મતદાન કેન્દ્ર ઉપર પોતાનો મત આપ્યો હતો। રાજસ્થાનના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસની જીત બાદ આગામી મુખ્યમંત્રી કોણ હશે તેનો નિર્ણય પાર્ટી હાઈકમાન્ડ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને રાહુલ ગાંધી લેશે। પાર્ટી તેમના માટે જે પણ ભૂમિકા નક્કી કરશે તેઓ તેને સ્વીકારશે। સાથે જ કહ્યું કે રાજ્યમાં જીત અમારી गारंटियों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई क्रेडिबिलिटी गारंटियों की है। सरकार उसमें रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले, 5 साल बाद आएंगे सब लोग। રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ વસુંધરા રાજે ઝાલવાડાના એક મતદાન કેન્દ્ર ઉપર પોતાનો મત આપ્યો હતો। તેમણે જણાવ્યું હતું કે હું તમામ મતદારોને ખાસ કરીને નવા મતદારોને જોરશોરથી મતદાન કરવા માટે અનુરોધ કર્યો હતો। કેન્દ્રીય મંત્રી અને બીજેપી નેતા અર્જુન રામ મેઘવાલ પોતાનો મત આપવા બિકાનેર ઈસ્ટના કિસામીડેસરના બૂથ નંબર 174 ઉપર પહોંચ્યા હતા। તેમણે જણાવ્યું હતું કે મને લાગે છે ભાજપ તમામ બેઠકો ઉપર જીતી રહ્યું છે। રાજસ્થાન વિકાસના મુદ્દા ઉપર મતદાન કરવા જઈ રહ્યું છે। મેં દરેકને 100% મતદાન કરવાની અપીલ કરી છે। देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार बनाने जा रही है। आज मतदान का दिवस है। आपको लग रहा है कि मैं जिस बूथ पे खड़ा हूं, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। लोकतंत्र की ताकत नजर आ रही है ना साफ साफ। हर जगह जिस तरह से मतदान लंबे मतदान केंद्रों में लाइन लगी है, ये क्या संकेत है? ये संकेत है जो चुनाव आयोग ने जो कुछ नवाचार किए हैं उसका भी असर हमें देखने को मिल रहा है। કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવતે જોધપુરમાં પરિવાર સાથે મતદાન કરવા પહોંચ્યા હતા। આ પ્રસંગે તેઓએ જણાવ્યું કે જનતા ગેહલોત સરકારને હટાવશે અને ભારે બહુમતી સાથે ભાજપને ચૂંટશે। મુખ્યમંત્રીના પ્રશ્ન ઉપર ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવતે કહ્યું કે પાર્ટીનું સંસદીય બોર્ડ અને વિધાનમંડળ આ અંગે નિર્ણય કરશે। કમળનું પ્રતીક અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ ચૂંટણીમાં અમારો સૌથી મોટો ચહેરો છે। अधिकतम मतदान करना चाहिए और मतदान के स्तर को हम 100% तक लेकर के जाएं, इस तरह की परिस्थिति हमको लाना चाहिए। अब लोकतंत्र देश का परिपक्व हुआ है, 75 साल लोकतंत्र के पूरे हुए हैं, तो निश्चित ही हम सबको अब और अधिक परिपक्व मानसिकता के साथ में और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और तेज गति के साथ में बढ़ रहा है, सधे हुए कदमों के साथ में बढ़ रहा है, तो इस विकसित होते हुए भारत को के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान किस तरह से इस विकसित भारत की यात्रा का ग्रोथ इंजन बने, इस दृष्टिकोण से राजस्थान के मतदाताओं को मतदान करने की आवश्यकता है। પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી સચિન પાયલોટ ટોંક વિધાનસભાથી ઉમેદવાર છે। તેઓએ જયપુરમાં મહાત્મા ગાંધી રેસિડેન્સી સ્કૂલમાં મતદાન કર્યું છે। ભાજપના અજીતસિંહ મહેતા પાયલટને ટક્કર આપી રહ્યા છે। વોટ બાદ તેમણે જણાવ્યું કે જનતા બુદ્ધિશાળી છે, જનતા સાચો નિર્ણય લેશે। 2018માં જ્યારે અમે વિપક્ષમાં હતા ત્યારે તે મુશ્કેલ સમય હતો, પરંતુ આ વખતે અમે સરકારમાં છીએ અને વધુ તાકાત સાથે ચૂંટણી લડી રહ્યા છીએ। અમે ફરી સરકાર બનાવીશું તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। विवाद बदलेगा सर इस बार 5 साल का? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो
भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं। और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बना पाएंगे। सर, इस बार पीएम मोदी खुद जनसभा करने के लिए उतरे थे, क्या असर देखने को मिल रहा है? कल आपका एक वीडियो सीएम के ट्विटर हैंडल से साझा किया, 5 साल में पहला इसमें बहुत देर हो गई। देखिए, हम लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव हारवा सकता है, ना जितवा सकता है। पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई। हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे 200 में से, 5 गुना हमारी सीट बढ़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की संसाधनों से लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं। और प्रदेश के साथ देश में जो सरकार है उसको भी 10 साल से लोग देख रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी सब लोग देख रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। और जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो भाजपा में है। हम लोग तो पहले भी एक थे, आज भी एक हैं, और पार्टी को जरूरत आज है, पार्टी को जरूरत है हम स्टेट्स में चुनाव जीतें। स्टेट्स में हम चुनाव तब जीतेंगे जब हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत अंडर करंट आएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बहुमत ला पाएंगे, इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूं कि मुझे जनता के वोट पे, जनता के विवेक पर विश्वास है। हमारा जो रिस्पांस कैंपेन का रहा, राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, तमाम रैलियां की पूरे प्रदेश में, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट गया। भाजपा के कैंपेन में दम नहीं था, वो बहुत कोशिश उन्होंने की, प्रदेश के नेताओं से खूब करवाया, अंत में फिर बाहर के लोग आके यहाँ भाषण देके गए हैं, लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है। रिस्पांस हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है, और हम लोग पिछली बार से ज्यादा बहुमत ला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री ने आपका नाम लेकर भी कई बार कहा, और खासकर कई सभाएं प्रधानमंत्री ने की। मुझे खुशी होती अगर केंद्र के जो नेता है भाजपा के, यहाँ पे आके अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं कि उन्होंने कितना 10 साल में काम किया, राजस्थान प्रदेश को क्या विशेष परियोजनाएं दी हैं, राजस्थान को स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया है, इन्वेस्ट किया है, हमारे को हमारे अधिकार का पैसा भी तक नहीं मिला है। तो राजस्थान के लोगों के बारे में अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते, अपना विजन प्रस्तुत करते। हम लोग बात करते हैं नौजवान की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उसकी चर्चा नहीं करना है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जनता समझ रही है कि वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को करते हैं। ચૂંટણીના પરિણામો 3 ડિસેમ્બર જાહેર થશે। શ્રી ગંગાનગરની કરણપુર બેઠક ઉપરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અને વર્તમાન ધારાસભ્ય ગુરમિત સિંહ કુન્નારના નિધનને કારણે આ વિસ્તારની ચૂંટણી સ્થગિત કરવામાં આવી છે। રાજસ્થાનમાં કુલ 1862 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે અને મતદારોની સંખ્યા 5,25,38,105 છે, જેમાં 18 થી 30 વર્ષની વય જૂથના 1,99,9334 મતદારોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાંથી 22,61,008 નવા મતદારો 18 થી 19 વર્ષની વય જૂથના છે।